Your net is not visible. Kindly take care. I'm Sasangi. We discussed anatomy of some asanas. So before that, we should have to do some warm-up exercises, that is Sukma Vyayama. Okay. Straight your spine. Relax few seconds. Feel the breathing process. Internal and external. Shoulder relax. Spine relax. Few seconds. Close your eyes. Namaste Krishna. Yogena Chittasya Padena Vacho Malam Sarirasya Kavedyatina Yupakarotam Pavaram Patanjalim Pranajanirana Tasmi Avavusha Haram Ramukachatasidharim Saraswati Svatam Brahmani Patanjali. Open your eyes slowly. So, आज का सेशन में अब ध्यानोचित्तासना 3-4 आसना के ऊपर हम बात करेंगे उसके चला तो स्ट्रेट सूक्ष्म व्यायाम विभास विकास inhale up exhale 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now rotate. Inhale, right, left, left, right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, Skanda Shakti Vikas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Libra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, right it up. Inhale, pull left hand side, right hand elbow पीछे की तरफ हल्का 1 2 3 4 5 6 7 right hand से पीछे की तरफ 1 2 3 4 5
दूसरा बड़ी शक्ति विकास है। इनहेल 1 2 3 4 5 2 inhale 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 inhale 1 2 3 4 5 2 inhale 1 2 3 4 5 last one inhale 1 2 3 4 5 and change left hand side inhale 1 2 3 4 5 2 inhale 1 2 3 4 5 last one inhale 1 2 3 4 5 reverse inhale 1 2 3 4 5 2 inhale 1 2 3 4 5 last one inhale 1 2 3 4 5 अभी एक्शन both hand दोनों हाथ से forward one breathing 10 rounds एक breathing में हम 10 राउंड कर दें inhale ready start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 straight 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 now body shakti vikas inhale exhale out 2 3 4 5 and change inhale 2 3 4 5 body shakti vikas 2 lower leg inhale exhale 2 3 4 5 okay now koti shakti vikas 3 legs open hands back inhale exhale 2 3 4 5 up okay now janga shakti vikas inhale 1 2 3 4 5 up 2 inhale 1 2 3 4 5 up 3 inhale 1 2 3 4 5 two more rounds inhale 4 1 2 3 4 5 last one inhale 1 2 3 4 5 up good one now Padamula Shakti Vikasa
पदमूला शक्ति विकासक 1 2 3 4 5 rotate 1 2 3 4 5 reverse 1 2 3 4 5 change left leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rotate 1 2 3 4 5 reverse 1 2 3 4 5 now okay legs open हम लोग आज अभी रोज प्रैक्टिस होती रहती है तो आज थोड़ा सा हम एक एक आसना फटाफट कर लेते हैं स्टैंडिंग से स्टैंडिंग आसना एक एक करेंगे फिर सिटिंग पोज फिर सुपाइन पोज करेंगे रेडी ताड़ासना feet together or half feet apart ताड़ासना feet together and half feet apart इनहेल करते हुए इस तरह से होल्ड यहाँ पर एक्सेल कीजिए बॉडी पूरा बैलेंस होने के बाद एक्सेल करके नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hands down exhale okay legs open आज मैं आप लोग को त्रिकोणासन का सम वेरिएशंस बता रहा हूँ एक है सिंपल सिंपलीफाइड इस काइंड ऑफ सिंपलीफाइड है बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट राइट एंड नॉर्मली आप शोल्डर पे टच नहीं होना चाहिए शोल्डर और इसमें क्या बोलते हैं शोल्डर और नेक के बीच में इस तरह से नहीं होना चाहिए और गैप होना चाहिए और 4 उंगली का इस तरह से कान में नहीं लगना चाहिए हाथ बिल्कुल यहाँ से इनहेल करते हुए 3 काउंट 1 2 3 ये बड़े शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स ये बिल्कुल इस तरह से रहेगा यहाँ पर होल्ड करना है 6 सेकंड 1 2 3 4 5 6 हाथ घुमाना है एक्सेल नीचे की तरफ से देखें पॉज ऑफ रेस्ट अगेन इस तरह से यहां से इनहेल करते हुए 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 exit 1 2 3 relax now कटी चक्रासना एक सिंपलीफाइड आती है त्रिकोणासन में और दूसरा वाला त्रिकोणासन मुक्ति भी कराया था एनाटॉमी समझाया था तो आप और थोड़ा सा करेंगे कटी चक्रासन एक सिंपलीफाइड वर्जन आता है जो इस तरह से दोनों हाथ को पैर शोल्डर डिस्टेंस होना चाहिए पैर डिस्टेंस जो है वो शोल्डर डिस्टेंस ठीक है दोनों हाथ उंगली इस तरह से रखना है चेस्ट के सामने फिर यहां से इनहेल एक्सहेल करते हुए 3 काउंट में 1 2
होल्ड करना है, कमर घूमना है, हिप नहीं ट्विस्ट होना है। यहाँ पर 6 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 इनहेल करते हुए इस तरह से आना है। Excuse me, sir. Excuse Sorry? me, sir. Sir, actually, I have one patient, so I Okay, sir, okay. a patient. So I have to leave, I think, because one patient came to give saline, to give IV fluid. I'm staying in quarter in Health and Wellness Center. आपका आवाज वॉइस क्लियर नहीं हो रहा। आई एम नॉट गेटिंग इट प्रॉपर्ली। Okay. Okay, ठीक है सर। आप क्या कहना चाह रहे हो, अच्छा से बोलिए तो जरा। एक्चुअली मास्क मेरा पहन के पास अच्छा, हाँ इसलिए आप क्लियर नहीं आ हम रहा। हेल्थ कोई नहीं। यू आर नॉट इन पोजीशन राइट नाउ, सो जस्ट ओके। नो एक पेशेंट आया, वो अभी क्लास में है, लेकिन पेशेंट आया, पेशेंट के लिए हम जाना पड़ेगा सर। हाँ So वही बोल I'm रहा हूँ just ना। यू कैन ओके। okay. ऐसा किया था। अभी दूसरी तरफ करेंगे सेम। ध्यान से देखिएगा, जो बॉडी है ना, बॉडी एक जगह पे ये वाला आपा जो वेस्ट से नीचे है ना, बिल्कुल स्टिल। एक बार नीचे वाला घूमना है। डू नॉट टर्न योर हिप लाइक दिस। तो नॉर्मली मैंने बहुत जगह पे देखा है, कर रहे हैं, कोई भी, मेरा भी मिस्टेक होता है, सबका भी होता है, लेकिन हम कोशिश वी शुड ट्राई प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को रखना है इस तरह से। इनहेल एक्सहेल करते हुए सिंपल। सिक्स सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 इनहेल 1 2 3। ये कोटि चक्रासन का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्लास के बाद आप लोग ये अपने कॉपी में नोट करके सिंप्लीफाइड वर्जन और ट्रेडिशन मॉडर्न बहुत सारा वर्जन, एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो त्रिकोणासन एक दिखाया और एक ये कोटि चक्रासन। नाउ वी आर बैक टू द त्रिकोणासन। 2.5 or 3 feet। I am repeating the last class। क्लास का जो त्रिकोणासन मैंने तो आप लोग को जो समझाया था, बहुत सारे लोग नहीं आए थे और नया आए, इसलिए दोबारा से एक बार करना कर देंगे। ये जो है त्रिकोणासन, लेग का पोजीशन बिल्कुल हील और टोस एक ही लाइन पे होगा, 3 फीट अपार्ट। बॉडी 90 डिग्री लेने की, इधर ऐसा नहीं होना है, बॉडी पूरा 90 डिग्री रहेगा। सिर्फ यहाँ से राइट लेग इस तरह से टर्न करना है, देखो। और ये जो बैक लेग लेफ्ट, अभी मेरा इस तरफ अगर मैं झुकूंगा तो ये पीछे होगा बैक लेग, तो नी। और ये अभी अगर यहाँ से अगर 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री एंगल में आ गया, सपोज, है ना। जो मिडिल ऑफ द बॉडी इज 90 डिग्री, ओके, ये 45 डिग्री है। तो ये जो यहाँ से जो है, यहाँ पे जो लेग का जो फुट वाली पर्सन है वो 90 डिग्री ऐसे होगा। अगर ये हील और टोज और हील एक ही लाइन पे होगा तो हम लोग को इस तरह से हल्का सा मूव करना है, 45 और 60 और 45 डिग्री। ये इधर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बॉडी बिल्कुल ऐसे एंड स्ट्रेट। अब आपका सेक्रम ट्विस्ट होना है और आपका बंदास लगेगा यहाँ पर उडियाना बंदा, राइट। उडियाना बंदा एंड उडियाना बंदा हेल्प साथ साथ स्वादिष्ठाना चक्र को अटैक करे, जस्ट अटैक स्वादिष्ठाना चक्र एंड उडियाना बंदा पोज, ठीक है। इनहेल
टर्न, यहाँ से धीरे धीरे एग्जिट। तो यहाँ पर ऊपर ये जो है ये इस तरह से इधर टर्न रहेगा और ये जो पर्सन ऊपर रिब्स, लोअर रिब्स, होल रिब्स सेक्शन शुड बी टर्न इस तरह से। ये जो है ये हो गया आपका त्रिकोणासन। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग 1, लंबा लंबा करके 2, 3, 4, 5. Inhale, body straight, same जगह 90 degree, body straight. Hold, turn. यहाँ body straight 90 degree, 45 degree, नीचे 60 degree, foot. Exit. और एक्सेल करने के सैक्रम इस तरफ आएगा, ऊपर यहाँ से ऊपर इस तरह से टर्न होगा, यहाँ से स्ट्रेट ऊपर देखना है अपना फिंगर को, थंब को देखना है, दृष्टि उधर ही रखते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, exhale there, hands down. अभी त्रिकोणासन आप लोग को आज थोड़ा सा डिटेलिंग है, एवरीडे ऑल आर प्रैक्टिसिंग आसनास एंड, लेकिन थोड़ा बहुत सर ने बताया मुझे थोड़ा बहुत एनाटॉमी और सिस्टम त्रिकोणासन और परिविता त्रिकोणासन। इसके बाद दूसरा आएंगे परिवित्र त्रिकोणासन, ठीक है। तो परिवित्र त्रिकोणासन में द पोज मींस दैट it will go wherever the sacrum leads. सैक्रम त्रिकोणासन में हम लोग सैक्रम का भी बोला है, तो परिविता त्रिकोणासन में भी सैक्रम पूरा ट्विस्ट होगा। त्रिकोणासन में अब नेक्स्ट जो स्टेप करने वाला है उसको परिविता त्रिकोणासन। जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, करना नहीं है आप लोग को, बाद में कर लेना, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेना, करना नहीं है, डेमो देखो, करो नहीं प्लीज। यहाँ सेम परिविता त्रिकोणासन, ठीक है। टर्न योर अपर बॉडी टर्न, ठीक है। दिस इज परिविता त्रिकोणासन। देखने में इजी है, लेकिन इजी से भी हो सकता है, लेकिन जब उसका प्रॉपर आप रोटेशन, अगर मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा तो उसका वैल्यू नहीं है। सिर्फ बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन जो वर्क करता है, जो आसन हम बोलते हैं ना, आसन करने से ठीक होता है, ये होता है, वो फंक्शन नहीं बने। तो यहाँ पर बताया जा रहा है परिविता त्रिकोणासन में, दिस पोज मींस it leads sacrum को lead करे, consequently the lower spine twist in the direction of this pose. The pelvis would have turned in the same direction. If the pelvis free to rotate around the hip joints, the pose exhibit a more evenly distributed twist throughout the spine rather than overloading. T11 and T12 ध्यान रखिएगा, टॉर्सो 11, टॉर्सो 12, टॉर्सो 11, टॉर्सो 12, यहाँ तक तो आता ही है, यहाँ पर है टॉर्सो 11, टॉर्सो 12, ठीक है। लंबरेन 4, 5 के ऊपर टॉर्सो 11, टॉर्सो 12, T1 से लेके T12, ठीक है। यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ से टॉर्सो, यहाँ पर है C1 से C7। तो ये सारे चीजें बहुत जानना जरूरी है। अगर हम बीइंग ए टीचर, बीइंग ए इंस्ट्रक्टर, वी शुड अंडरस्टैंड इस टाइम, इस वक्त जरूरी है, पहले नहीं था, अब बहुत जरूरी है।
बेसिक ज्यादातर T1 और सॉरी T11 और T12 के ऊपर ये बेस है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो पोजीशन है ना, पोजीशन है उसमें ऊपर जो घूमता है तो बैक पूरा रोटेट होता है, पूरा रिब्स एंटायर lumbar spine can only twist 5 degrees around the vertical axis। ठीक है, मैं इस तरह करके दिखाता हूँ। ये लेग बिल्कुल स्ट्रेट, ये सैक्रम, ठीक है, यहाँ पर ये पैर पूरा यहाँ से ये रोटेट होगा इस तरह से। तो रिब्स का मूवमेंट और ये लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन पूरा रोटेट होगा, सैक्रम टर्न। ठीक है, तो एक बार करके दिखाइए जरा, आइए तो खड़े हो जाइए प्लीज। थ्री फीट जैसे त्रिकोणासन था सेम है। हाँ हैंड्स ओपन, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री, राइट लेग टर्न, राइट लेग टर्न, एक्सेल करते हुए नीचे घूमिए, एक्सेल करते हुए नीचे। हाँ गुड। अभी क्या करना है, होल्ड, अभी कुछ नहीं करना। अब आप लोग ना लोअर स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए, लोअर स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए, लोअर स्पाइन ट्विस्ट, और ऊपर रिब्स को, स्पाइन नीचे से अंदर की तरफ घूमेगा, रिब्स ऊपर से इस तरह से घुमाओ और शोल्डर लेवल पे हाथ उठा लो और वहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2, कोई कोई तो रुक गए, 3 4 5। इनहेल। रूपक जी आपका लेग का पोजीशन सही नहीं हो रही है। अब हैंड्स डाउन, एक्सेल, हैंड्स डाउन। एक ये जोहा बरकत मैडम, आपका लेग का पोजीशन सही नहीं है। लेग का पोजीशन मैंने दिखाया था अभी, कुछ प्रैक्टिस कीजिए। दिवाकर जी आपका लेग का पोजीशन सही नहीं है। सबका तो मुश्किल है देखना, लेकिन बहुत जरूरी है। मैं अगर करा रहा हूँ तो मुझे ये थोड़ा सा आप लोग को शेयर करना मेरा बनता है। वो जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग तो पहुंच पा रही है कि नहीं। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। नहीं दीपक जी दोबारा देखिए। अब बॉडी, हम लोग को स्पाइन ट्विस्ट करना है, स्पाइन को खराब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि योग से हमारा बॉडी अलाइनमेंट ना, बॉडी टेढ़े मेढ़े को सीधा कर सकते। अगर योग से अगर टेढ़ा हो गया वो सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि स्पाइन पूरा ट्विस्ट कर ही देगा तो उल्टा कर ही देगा ना। तो एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूँ, आप लोग एक बार नोटिस कीजिए तो जरा। सिर्फ लेग का पोजीशन देख लीजिएगा अच्छा से। मेरा फेस तो दिखेगा नहीं शायद, ये 30 डिग्री है। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए। सॉरी टू एक्सेस। हाँ, अब देखिए ये इस तरह से बॉडी लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, अभी मैं लेफ्ट साइड कर, राइट साइड
फर्स्ट राइट साइड से करना होता है। राइट साइड को इस तरह से मेरा देखिए इधर पूरा बॉडी के अलाइनमेंट देखिए, बिल्कुल यहाँ से इनहेल स्टमक इन, इनहेल एयर, ठीक है। टर्न, एक्सेल, फिर ये मेरा इधर से टर्न हो गया और ये ऊपर अब घुमा, सॉरी इस तरह से, फिर यहाँ से इनहेल, ठीक है। अब से यहाँ से एक्सेल करते हुए बॉडी ट्विस्ट, लेग स्ट्रेट, समझ में आया आप सबको? एक बार वन मोर, 3 फीट, नी स्ट्रेट, नी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होना है। हाँ एक बार लेफ्ट एंड राइट साइड करिए, राइट साइड भी करिए, जिनका राइट साइड नहीं हो रहा है सब। हाँ यस, नी बेंड हो रहा है, नी पूरा टाइट, एकदम टाइट। हाँ पेट अंदर, लंबा लंबा श्वास भरना है। यस, शोल्डर पूरा मूव होगा। यस गुड, ओके। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वीरभद्रासन का वेरिएशन। वीरभद्रासना 1, वीरभद्रासना 2, different arrangement of the feet. Virabhadrasana 1. Effect where you experience the challenges of this both the shorter stance in front of back, from front to back requires less mobility in the pelvis. So support leg. यहाँ पर हम लोग ग्लोटस मीडियस, फेमोरिस, यह चीजें, इरेक्टर स्पाइनिया, डेल्टॉइड, रेक्टस एब्डोमिनिस। वीरभद्रासना 1। अभी वीरभद्रासना 1 में हम 5 फीट, 4.5 और 5 फीट वीरभद्रासना, ये वीरभद्रासना एक्चुअली ये वीरभद्रासना 2 बताया जाता है। कई बार हम लोग वीरभद्रासना 1 करते हैं, कई बार 2 बोलते हैं, लेकिन ग्रुप में यहाँ पर 2 दिया है, 1 वीरभद्रासना, यहाँ से 1। एक्चुअली वीरभद्रासना 1 ये है। 1 में क्या होगा कि ये पूरा बॉडी स्ट्रेस होगा, अपर बॉडी, शोल्डर पूरा स्ट्रेस, ये यहाँ से पूरा हैमस्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो है यहाँ abductors, ये कप मसल्स एंड सीन बिल्कुल स्ट्रेस, ये बिल्कुल स्ट्रेट। आर्थराइटिस के लिए रामबाण है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट, और ये पूरी बंदास इंटरनल मसल्स, normal breathing, but your muscles should be tied inner, like this. Normal breathing, heel straight, 1, 2, 3,
4, 5. Inhale. Straight, not hands down. Turn right, left side. Exhale here. ये बिल्कुल straight, hip open, straight, 90 degree upper body. आगे देखना है fingers में. Stand straight. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up, hands down. अब हम लोग आ रहे हैं वीरभद्रासना 2. वीरभद्रासना 2 में पूरा deltoid, rectus, abdominal muscles सब एक्सर. 5 feet apart, turn towards the right, body straight. देखो body का पोजीशन ये बिल्कुल मैं 90 डिग्री पोजीशन वाई से बिल्कुल मेरा. ज्यादा अर्ज नहीं करना है, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है. बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट. जैसे यहाँ हूँ, यहाँ से इस तरह से लेके आ सकते. अगर यहाँ से तो बॉडी जो 90 डिग्री है सिर्फ घूमना है, टर्न इस तरह से. फिर यहाँ से हाथ ऊपर इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल देयर. ये अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट. ऊपर थाम्स को देखना है, डेल्टॉइड, हैमस्ट्रिंग, अपर femoral nerves, spine बिल्कुल स्ट्रेट. Normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. हाथ नीचे नहीं आना है, हाथ ऊपर ही रहेगा. हाथ ऊपर, नमस्ते पोजीशन ऊपर. यहाँ से सिर्फ लेग को घुमाना है. 90 डिग्री लेग एंड बॉडी टर्न. एक्सहेल देयर. 1, 2, 3, 4, 5. बिल्कुल स्ट्रेट योर बैक लेग, hamstring, for upper ribs, body tight. Inhale up, hands down. ये वाली समझ में आया ना आप लोग को कैसे करना है. हैमस्ट्रिंग पूरा काम करता है इसमें. ग्लूटस मीडिएटस, रेक्टस. जब हम लोग इस तरह से करते हैं तो ये रेक्टस वाले मसल काम करता है. ठीक है. फ्यूमरल नर्व्स खींचता है अंदर से. तो बहुत सारे इसमें फंक्शंस होता है. और ऊपर से सर्कुलेटरी सिस्टम्स डेवलप करता है इससे. ठीक है. एक बार ट्राई करके देखिए दोबारा से. लेग्स ओपन, 5 feet अपार्ट. 5 feet. अगर लंबा है तो थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो, लेकिन 5 feet करना है. 4.5 से 5 feet. यस. दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड. इनहेल. स्टोमक को इन कीजिए. बिल्कुल आर्च नहीं करना है, ज्यादा बॉडी बेंड मत करो. 90 डिग्री स्ट्रेट. बॉडी को ज्यादा बेंड नहीं करना है, बॉडी स्ट्रेट रखो. सिर्फ अपर बॉडी खींचो ऊपर की तरफ. पेट अंदर, बिल्कुल पेट अंदर ऐसे खींचना है. नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, लंबा लंबा श्वास भरना है, छोड़ना है. पेट लेकिन अंदर ही रहेगा, उड़ियाना बंद. 2, 3, 4, 5. Turn. Yes, down. 1, 2, 3, 4, 5. ज्यादा अर्च हो रहा है. अर्च होने से बाकी पता नहीं कौन सिस्टम बहुत है. डिफरेंट सिस्टम है. एक्सहेल. यस. इनहेल एंड अप. हाँ, कईयों ने हैंड्स ओपन करा है. हैंड्स
ओपन कर सकते हो, बहुत सारा स्टाइल है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन आप ट्रेडिशन उठा के देखो, बहुत पुराना एंशियंट ट्रेडिशन, अष्टांग, मतलब जहां 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 पर बेस है ना, नमस्ते पोजीशन, वीरभद्रासन, ये हनुमान का, हनुमान जी का और वीरभद्रासन वॉरियर पोजेस है। वॉरियर पोजेस शुड नॉट बी ओपन। आई एम बीइंग अ मार्शल आर्ट स्टूडेंट, आई नो इट वेरी वेल। भी ऐसे ओपन नहीं होता, पत्थर लेके नहीं करते। आजकल मॉडर्न हो गया, थोड़ा दिखने में भी अच्छा है, ये करो वो करो, उंगली ओपन करके नहीं। वीरभद्रासन शुड बी लाइक दिस, ओपन, हैंड्स को ओपन, बॉडी से स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट। यहाँ से पता चलता है ताकत आती है कि नहीं आएगी। आप ऐसे करोगे स्टाइल हो रहा है, जिस पावर योगा, आई नो पावर योगा, आई हैव डन, बट ऑल आर कम्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सब कुछ निकलता है, सब कुछ अपना अपना टैग लगा दे। फिर भद्रासना शुड बी लाइक दिस। आप नॉर्मली ऐसे करके ऊपर देखो और हाथ जोड़ के देखो, ऑटोमेटिकली फर्क नजर आएगा। ऊपर ऐसे हम लोग वैसे ना पर्वतासन इस तरह से भी करते हैं ना, हम लोग ऐसे करके देखो और हाथ जोड़ो ऊपर, ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेच होता है। ऐसे करने से नहीं आएगा ये, ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जगह एक्सपांड होता है। बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिकली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो इट्स फॉर डिफरेंट। और हमेशा इस तरह से नहीं किया जा सकता, वीरभद्रासन ओपन ऐसे उंगली ओपन नहीं, हाथ जोड़ो बिल्कुल। यहाँ से एग्जांपल ये, हाथ को इस तरह से जोड़ना और स्ट्रेट, ये जगह देखो ओपन, ना कि इस तरह से, नो। कमर बैंड बच जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी डजंट मैटर जब आप फिट हो। फ्लेक्सिबिलिटी में ये नहीं होता है कि आप बीमारी नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल होने वाला उसका भी कमर दर्द होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम। सो प्रॉपर एंगल, प्रॉपर डायमेंशन, इतना सिर्फ हिसाब से करना है, हर चीज हिसाब से करना है, उसमें फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभी आएंगे सिटिंग पोज में। पश्चिमोत्तानासन उस दिन बताया गया है सर। अब जानु शीर्षासन, आज का लास्ट टॉपिक होगा जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन, am I audible? जानु शीर्षासन, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, दंडासना, ध्यान से सुनिएगा, दंडासना। और जानु शीर्षासन से पहले बताता हूं, करने से पहले हम लोग जानु शीर्षासन में बंदास लगता है। ठीक है, जानु शीर्षासन में बंदास लगती है, महाबंदा, सिर्फ एक बंदा नहीं लगता है, महाबंदा इंक्लूडिंग 3 बंदा, मूल जलांतर बंद, ओडियाना बंद एंड मूलाधार बंद। अगर आप ये सब को जानोगे तो जानु शीर्षासन गुड, और नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल वो बोलते हैं ना, इसे करो ठीक हो जाएगा, उसे करो ठीक, वो वाले। अगर पूरा जान के करोगे इट विल बी बेटर ना। जानु शीर्षासन में पूरा, आज सिर्फ नेक्स्ट थर्सडे जो क्लास होगा, जानु शीर्षासन का पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। आज मैं सिर्फ बंदास लगाने का प्रैक्टिस बता। ये 90 डिग्री बॉडी ऐसे रहेगा, ये 90 डिग्री, ठीक है। और इस तरह से नहीं करना है, ये वाला जानु शीर्षासन और ऐसे वाला जानु, ये नहीं होता। बॉडी स्ट्रेट, दंडासना, ध्यान रखिए, करना नहीं है, देखिए हाउ टू डू इट। नाउ फ्रंट 90 डिग्री, 90 डिग्री एल से, ठीक है। बॉडी ट्विस्ट, ये बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। यहां से इनहेल, ये पैर अंदर रहेगा, उडियाना बंदा, फर्स्ट स्टार्टिंग टू बी उडियाना बंदा से स्टार्ट हो। इनहेल, एक्सेल, पैर अंदर ऑटोमेटिकली गया। फिर यहां से
ठीक है, मैंने बॉडी नहीं झुकाया, नाक इस तरह से नहीं कर रहा हूं मैं। समझ में आप लोग को प्रोसेस पता चल गया। अब मैं साइड से लिखा, अब मैं बॉडी ऐसे नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नॉट लाइक दिस। ओके, यस, इनहेल, समाधि, उड़ियाना बंदा, एक्सेल, ठीक है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट, हमेशा इसमें फोकस रहेगा, टोस पे फोकस। ये ठीक है, हाँ, अभी ये समझ में आया ना क्या करना है। महाबंदा जब मैं कर रहा हूं, यहाँ से झुक रहा हूं, तो जब ये नीचे झुक रहा हूं ना, तो ये महाबंद, ये जो जलांधर बंदा लगता है, ठीक है, ये उड़ियाना बंदा, फिर मूलाधार बंदा, तीनों को एक साथ महाबंदा होता है, ठीक है। तीनों को तीन बंदस लगते हैं। तीन बंदस जब हम करते हैं, जानु शीर्षासन का इफेक्ट बढ़ता है और परफेक्ट बोलते हैं ना, जो जानु शीर्षासन, तो वो बोले जब जे, ठीक है। एक बार कोशिश करिए, दंडासना, स्ट्रेट और बॉडी, स्टोमक इन, ये देखिए स्टोमक इन, फिर इसके बाद राइट लेग बेंड, बिल्कुल स्ट्रेट, टोज इन, एक्सहेल करते हुए नीचे, टोज देखना है, टोज देखो, पहले ही मैंने अभी क्या बोला था, बॉडी बेंड नहीं करना, स्पाइन को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट, ये देखो स्ट्रेट। फिर आगे जब झुकोगे, नीचे जाओगे ना, यहाँ पर जाके आप बंदा सो जाएंगे। पहले तो उड़ियान बंदा, जब नीचे जाओगे आपका टोज, ये सॉरी चिन सिन पे लगना है, देन इस तरह से, पहले से नहीं लगना है, ऐसे नहीं लगना है, ये बेंड नहीं होना है, बॉडी ऐसे स्ट्रेट, ये ठीक है। उड़ियाना बंदा डाउन, आगे, ये पूरा ऐसे। अब यहाँ आया, ये जलांधर बंदा लगा, नीचे मूलाधार बंदा, महाबंदस हो गया। चलिए अगेन दंडासना पोजीशन पे आप काउंट में करेंगे, काउंट में करेंगे, दोनों हाथ साइड में ऐसे रखिए, राइट लेग फोल्ड कीजिए, यस यस, बॉडी स्ट्रेट, स्टोमक इन, 1, deep breathing, 3 times repeating, inhale, exhale, फिर आगे जाना है ऐसे धीरे धीरे करके, एक्सहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए पकड़ लीजिए, नीचे नहीं झुकाना है, बॉडी नीचे नहीं झुकाना बिल्कुल, जब तक मैं यहाँ पर इनहेल, सिर ऊपर, एक्सहेल आगे की तरफ, चिन नहीं लगाना, पहले पहले ऊपर टोस को देखो, टोस देखो, जितना दूर रुको वहीं पर रुको, धीरे धीरे नीचे जाओगे, धीरे धीरे नीचे जाओ, वहीं पर रुको कंफर्टेबल हिसाब से, 1 2 3 4 5 6, normal breathing, 7 8 9 10, inhale, exhale there, inhale, now dandasana, and leg change, yes, inhale, exhale, again inhale, exhale down like this, down, इस तरह से नीचे जाओ, नीचे जाओगे
नीचे जितना हो सके उतना ही जाना है और प्रेशर नहीं देना है बॉडी में। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल एक्सहेल देयर फट से नहीं उठना है, धीरे धीरे उठना है। अगेन इनहेल अप एक्सहेल। अब ये समझ में आ गया ना जानु शीर्षासन कैसे। नेक्स्ट टाइम जानु शीर्षासन का पूरा आप लोग को इसका एक्सप्लेन क्या है क्या नहीं है। मसल्स का महाबंधस तो बता दिया, अभी मसल्स का क्या स्ट्रेंथनिंग है क्या नहीं है नेक्स्ट क्लास में इसका होगा। इसके बाद नाउ आप लोग शीर्षासन करते हैं? कैन यू शो? श्योर सर। हाँ शीर्षासन एक बार करके दिखाइए। हाँ जो आती है जस्ट फ्यू सेकंड के लिए दिखाइए। रूपक जी दिखाइए। नेक्स्ट क्लास में हम शीर्षासन डिस्कस करेंगे। पूरा आसनस के बाद शीर्षासन होना बहुत जरूरी है। सर आप क्योंकि हेडस्पिन की बात कर रहे हैं ना? स्टिमुलेट करना है लैंड में पूरा मसल्स को और ब्रेन जो मेम्ब्रेन तक। रूपक जी आइए नीचे आइए धीरे धीरे करते हुए। अनम्यूट करिए रूपक जी, अभी अनम्यूट करिए जरा। यस सर। अच्छा अभी एक सवाल है, जस्ट क्वेश्चन। आपका अभी जब किया था यहाँ पर ये जो जस्ट यहाँ पर प्रेशर आया कि नहीं आया? आया ना? फील नहीं किया सर। नहीं हुआ आपका, वो कर्व हुआ। ठीक है, ये जगह जो है ना, ये जॉइंट है ना, ये ऐसे था। हाँ है ना? अब वो करते करते इसलिए हैबिट हुआ, लेकिन दिस इज जब पूरा पूरा टाइप से होगा पूरा स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल दिखेगा कि नहीं, मैं भी वार्म अप होना पड़ता है शीर्षासन के लिए प्रॉपर्ली। जस्ट डेमो। सर मेरा बात सुनाई दे रहा है सर? सर मेरा बात सुनाई दे रहा है सर? भाई शीर्षासन ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोर स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। नॉर्मली बहुत सारे तरीका है शीर्षासन करना। जब आप यूजुअली डू दिस शीर्षासन, यहाँ पर कोर स्ट्रेंथ होते हैं। जब आप ऊपर नीचे करोगे तो आप कोर स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अब स्पाइन अगर सही नहीं रहेगा तो आप जब ये सब करोगे, जैसे डायरेक्टली उठना इसमें, तो गर्दन में फ्रैक्चर होने का चांसेस रहता है। अब हमको पता नहीं चलता है, हल्का सा मतलब होता है ना साइड में, जिस पॉइंट से हल्का सा निकल गया, पता भी नहीं चला। हमें पता कभी कभार कहीं ना कभी, तो ध्यान रखना है ये सब। लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा कर रहे थे आप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज एंड में हम लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं ना? सूर्य नमस्कार आज करते हैं 5 राउंड। रेडी सर? नेक्स्ट डिटेलिंग का नेक्स्ट थर्सडे। एवरी थर्सडे वी
we prepare for some asanas, 2-3 asanas लेंगे, उसमें anatomy और asanas का पूरा explanation होगा। तो आप लोग रहने का कोशिश कीजिएगा, जितना देर रहोगे उसका बेनिफिशियल आपको ही होगा। हम लोग तो जस्ट शेयर करना है। सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं। सर मेरा शीर्षासन कैसे हुआ? यस, सूर्य नमस्कार। सर नमस्ते पोजीशन, नमस्ते पोजीशन। इनहेल अप, ऊर्ध्वस्थासना 2, पदहस्तासना 3, साष्टांग नमस्कार 4, पर्वतासना 5, सूर्यासना 6, भुजंगासना 7, पर्वतासना 8, अच्छा संचालना 9, पदहस्तासना 10, इनहेल ऊर्ध्वस्थासना। नमस्कार, समझते थे, ठीक है। देन अब काउंटिंग स्टार्ट। नमस्ते पोजीशन 1, ऊर्ध्वस्थासना 2, पदहस्तासना 3, अश्व संचालना 4, पर्वतासना 5, ओके, साष्टांगासना 6, भुजंगासना 7, पर्वतासना 8, अश्व संचालना 9, पदहस्तासना 10, उत्थानासना। नमस्ते। और एक राउंड एकदम स्पीड में, ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड राइट 1 राउंड। अगेन 1 अप, इनहेल 2 डाउन, 3 अश्व संचालना 4 पर्वतासना 5 साष्टांग नमस्कार 6 भुजंगासना 7 पर्वतासना 8 अश्व संचालना 9 अप, 10 पदहस्तासना 11 ऊर्ध्वस्थासना 12। नमस्ते। अगेन अब बाम अश्व संचालना करेंगे, मतलब लेफ्ट लेग लेके जाना, लेफ्ट लेग लेके आना। रेडी, नमस्ते नमस्कार पोजीशन 1, ऊर्ध्वस्थासना 2, पदहस्तासना एक्सेल 3, वाम अश्व संचालना 4, पर्वतासना 5, साष्टांग नमस्कार 6, भुजंगासना 7, पर्वतासना 8, वाम अश्व संचालना 9 अप, 10 पदहस्तासना 11 ऊर्ध्वस्थासना 12। नमस्कार और नमस्ते। प्लीज रिलैक्स, बैठ जाइए, सिटिंग पोस्चर। नाउ ज्ञान मुद्रा, deep breathing 5 times, inhale, exhale, this kind of bahaya pana. Inhale, exhale, 3 more rounds. Inhale,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Okay. Now Chandra Pranayama, Surya Pranayama. First, left, starting from left nostril. Mudra, left side. Inhale, exhale from right. Inhale from left, exhale from right. Inhale from left, exhale from right. Inhale from left, exhale from right. Last one, inhale from left, exhale from right. Please. Inhale from right, exhale from left. Inhale from right, exhale from left. 3 more rounds. Inhale from right, exhale from left. Inhale from right, exhale from left. Last one. Inhale from right, exhale from left. Close your eyes. Namaste position. There. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santo Nikam Sarve Bhadrani Chantu Makadachit Pavagave Om Shanti 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 Om Love your palm. Massage your eyes. Thank you, everyone. Do you have any question? सर मेरा जो शीर्षासन किया हूँ वो ठीक था। मेरा जो Yes. शीर्षासन किया हूँ ना। Hello. Hello. हेलो। हाँ, मेरा जो हाँ, शीर्षासन बोलिए। किया है वो ठीक था। आपने जो मैं शीर्षासन किया है ना, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। शीर्षासन एक्चुअली शीर्षासन किया है, उसमें आपका लेग्स ओपन, अलाइनमेंट सही नहीं, तो वो नॉर्मल आपने किया जिसे हम लोग करते हैं ना, लोग हैंडस्टैंड करते हैं इस टाइप का, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन शीर्षासन में बहुत सारा वेरिएशन, ये टाइप 2 वेरिएशन आपने डायरेक्टली किया। मैंने जो किया है ये बेसिक फॉर्मेशन है शीर्षासन। तो बेसिक फॉर्मेशन देन यू कैन ओपन। उसके बाद आपने जो शीर्षासन किया, उससे शीर्षासन के बाद सीधा बोकासन में आते हैं वहां, क्योंकि काइंड ऑफ लेवल 2 वर्जन है शीर्षासन का। अब डायरेक्टली वो हैंडस्टैंड की तरह किया है, लेकिन इट्स ओके फाइन। उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना पड़ेगा समझ के। शीर्षासन में क्या जरूरी होता है, शीर्षासन किस लिए होता है, वो पहले एक बार स्टडी कीजिए, देन प्रिपेयर फॉर शीर्षासन। Sir?
Excuse me, sir. Yes. I am able to do शीर्षासन, but मुझे wall की help लेना पड़ता है. Then वो धीरे धीरे शीर्षासन जरूरी नहीं कि सपोर्ट जरूरी है, वो मॉडिफिकेशन मेरा जो सजेशन है ना, आप गिर जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करो बिना सपोर्ट का, ताकि क्या कि हमारे मन में एक डर सा पैदा होता है, मुझे ये करने से चोट लग सकता है, ये लग सकता है। जब तक आप खुद से चैलेंजिंग फेस नहीं करोगे तो वो चीज नहीं होगा। ट्राई टू डू खुद से करने का मतलब वर्ल्ड पास में रखो, डायरेक्ट सपोर्ट मत, धीरे धीरे करने का कोशिश करना है, इतना वो नहीं करना, टफ नहीं करना। शीर्षासन करने से पहले शीर्षासन का कुछ नियम है, कैसे कोर स्ट्रेंथ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, बॉडी का बैलेंसिंग पहले बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा उसके ऊपर ड्रिल एक्सरसाइज करके देन यू कैन प्रिपेयर फॉर शीर्षासन। डायरेक्टली हेड डाउन करके शीर्षासन नहीं करना है, इंजुरीज होने का चांसेस 90% रहता है, चाहे वो वॉल में भी करो चाहे किसी में, तो वो इंजुरीज इंटरनल होगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस शीर्षासन। कोई नहीं। सर यस, मुझे पूछना था, सूर्य नमस्कार में वो जो हम लोग पहले पदस्थ आसन के बाद, पर्वतासन के बाद पहले किस पैर को आगे करेंगे या पीछे करेंगे? नहीं, अगर आप जैसे सूर्य नमस्कार में, सूर्य नमस्कार में जब अगर राइट लेग पहले लेके जाते हो संचालन, और अश्व संचालन का अंजनेय आसन बोलते हैं। अंजनेय आसन इसलिए कि हनुमान जी अंजना का बेटा है, इसलिए उसके नाम पे ये आसन तैयार किया गया। इसे काइंड ऑफ अंजनेय आसन बोलते हैं, लेकिन वो अश्व संचालन बोलते हैं, ठीक है। तो अंजनेय आसन में अगर आप राइट लेग को जाते हो, आपका प्रॉपर पोजीशन पे होना पड़ता है, और राइट लेग पहले गया तो राइट लेग बाद में, जब फिनिशिंग टाइम में भी राइट लेग आना पड़ता है, तो इसलिए बोलते हैं बाम अश्व संचालना है, दाहिने बाएं बोलते, इसलिए बोलते हैं राइट लेग लेके जाते हो तो राइट लेग को बाद में लेके भी आना है, और उसके बाद सेकंड, अगर फर्स्ट सीरीज में राइट लेके जाते हो तो राइट को पहले वापस भी लेके आना है, उसके बाद सेकंड सीरीज में लेफ्ट लेके जाना है, लेफ्ट वापस लेके आना। दिस इज द वन राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कभी एक बार राइट लिया लेफ्ट लेके आया तो ये हो गया ना मिक्सअप नहीं करना है। तो मतलब फंडा जो है ना क्लियर होना चाहिए, भले ही आपका पोजीशन सही ना हो लेकिन तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर यस, हाँ जी बोलिए, कौन? हाँ सर वो सूर्य नमस्कार जो शीर्षासन है वो तो हम लोगों ने, मतलब मैंने पहले कभी नहीं किया, तो वो क्या स्टेप बाय स्टेप आप करवाएंगे? क्योंकि कभी तो किया नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं 2 आसनास, हम लोग 2-3 आसनास रखेंगे, मतलब हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन ही करेंगे, मतलब थोड़ा करके ना, हाउ टू डू प्रोसेस, मतलब किस प्रोसेस में ये सब करना है, वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कर पाए। सर जैसे आई एम तो बिगिनर इन दिस क्लास, तो वो शीर्षासन कैसे हम लोग अभी थोड़ी करेंगे? दिस इज फॉर मी। मैम, आप अगर बहुत सारा बुक्स में भी देखोगे ना, बहुत हेल्दी, ओवरवेटेड, 60 इयर्स अबव, दे कैन आल्सो डू इंडियन जो ट्रेडिशन जो है ना, ट्रेडिशनल योग जो होता है बहुत टफ है, वो कर ले, क्योंकि ये पहले हम लोग हार नहीं मानते। यू कैन डू एवरी, जब तक आपके पास जान है ना आप कर सकते हो, ये नहीं कि हाँ कुछ चीजें नहीं, योगा का 1-2 क्लास करके भी ये शीर्षासन कर सकते हैं? नहीं, शीर्षासन डायरेक्टली नहीं करना है। शीर्षासन आपका बॉडी क्या बोलता है, शीर्षासन इज टफ, मतलब ये नहीं शीर्षासन बहुत लो लेवल आसन नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वही बोल रहा है। शीर्षासन इज द आसनों का राजा है शीर्षासन। तो शीर्षासन पूरा
केवल एंटायर बॉडी का सर्कुलेशन वहीं से होगा ना, उसमें ही खेल रहे हो तो फिर उस तरीके से खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर उल्टा वही मैं बोल रही हूँ, बिकॉज अभी तो 2-3 क्लास ही अटेंड किया है, तो शीर्षासन करने से पहले शीर्षासन का जो प्रोसेस है उसको जानना है, ड्रिल जानना है, देन प्रैक्टिस ऑन शीर्षासन। शीर्षासन का तैयारी करना, आपका क्लास खाना कब होगा? बनाते हैं, प्रिपेयर कुछ आइटम वो बनाते हैं तो उसके लिए चीजें तैयार करते हैं ना, वो तैयारी पहले करना पड़ेगा, देन यू कैन मेक शीर्षासन। थैंक यू। सर आपका क्लास कब होगा? सर मुझे सर कुछ आपका पूछना है। क्लास कब होगा सर? यस यस, आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब टाइम हो गया। हाँ सर बोलिए सर मुझे कुछ पूछना है। जल्दी। सर मैंने हैंडस्टैंड किया हुआ है, ठीक है, विदाउट टच विदाउट सपोर्ट, बट हाँ। शीर्षासन थोड़ा डिफरेंस है ना, तो वो हाथ मतलब टच करके नीचे, और हैंडस्टैंड में अलग है सर, हैंडस्टैंड तो दोनों हाथों में होता है, और शीर्षासन का जो है वो हाथ का सपोर्ट लेके। देखो हमारे यूथ तो में ना, सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैंने किया है पर शीर्षासन मुझे सपोर्ट लगता है, विदाउट सपोर्ट मैं करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हैंडस्टैंड का बैलेंस मेरे को आता है। तो विदाउट सपोर्ट कर लीजिए, कौन बोलता है आपको सपोर्ट लेने के लिए? मना ही नहीं कर सर, रहा हूँ ना गिर support। जाओ, मुझे वो किया नहीं ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गिरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं। उसका बैलेंस थोड़ा अलग है और उसका हाँ, बैलेंस भी अलग है। जब आप हैंडस्टैंड करते वक्त गिरते हो ना, हाँ गिरते थे ना पहले, तो शीर्षासन हाँ करने का टाइम भी गिर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना गिरने का भी तरीका आना चाहिए, आपको सिर को बचाना है, गर्दन को बचाना नहीं। ओके 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 सर, थैंक यू सर। सर हेलो सर। लास्ट क्वेश्चन। हेलो सर, हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? हेलो सर। हाँ जी बोलिए जल्दी। हाँ सर, ये जो वीरभद्र मुद्रा है, वीरभद्र स्टैंड है, वहां पर सर हम आर्च करेंगे या नहीं करेंगे, या स्ट्रेट रहेंगे पूरा? मैं क्लियर नहीं हो रहा हूँ आपका। जब वीरभद्र जब पोजीशन कर रहे हैं ना हम लोग, तब सर हम क्या जब नमस्कार करेंगे ना, तब क्या आर्च करेंगे या स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट रहेगा पूरा? हैंड स्ट्रेट मतलब आर्च नहीं होगा ना? हाँ इस तरह से। हाँ, थोड़ा पीछे आर्च बैक होगा, थोड़ा बैक क्या, नहीं थोड़ा आर्च नहीं करना है, बिल्कुल बॉडी पूरा स्ट्रेट रखना है। ओके सर। और सर क्वेश्चन जो बाद में महाबंधन, बताऊंगा, जब बॉडी स्ट्रेट रहेगा ना, फिर धीरे धीरे करके बैक होना है, डायरेक्टली नहीं। अच्छा बैक कर सकते हैं हम लोग? हम लेकिन अभी नहीं, पहले आप बॉडी का अलाइनमेंट सही रहेगा तभी तो बेंड कर पाओगे ना। अच्छा। हाँ, ऐसे बेंड करोगे तो चोट नहीं लगेगा। अच्छा सर, और लास्ट क्वेश्चन, Thank you all for joining us. Okay, next class we will discuss some other difficult aspects. Okay, thank you very much. Thank you all. Thank you, Sasamji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.